NIACL as a AO health officer, because it will combine my education as a BDS doctor, what I have learned in clinical studies, that will help, and my banking knowledge and financial knowledge, both will come and help me in NIACL as a role there in health officer as a. Muskan, I feel you're a bit confused. Dentistry, SBI, NICL insurance. No, so actually, after completing my graduation, I wanted to become a financially independent, and that was not possible if I joined after BDS, because there was such a less scope in job opportunities. That's why I started preparing for government exams, and I cleared SBI in one go. And later on, I came to know about insurance exam. And when I learned that there is a particular role for me as a graduate, as a BDS doctor, that's why I thought this is the perfect role for me, as it will help me. Is it BDS really struggling? But I've heard that BDS doctors earn a lot. Sir, it is a struggling. It will take so many years to get your grab in the market as well. If you establish your clinic as well, it will be very difficult to have the patients come to you to gain their trust as well. Okay. So, are you compassionate enough? Yes, sir, I am compassionate enough. That's why I chose these exams and I am preparing for it. But NICL is about rejecting claims. So I learn in that I am good in adaptability as well. I'll adapt it What if accordingly. a very poor lady is getting admitted to a hospital and her claim is expired 2 days before? What will you do? Okay. So if the claim is expired 2 days before, there is a waiting period that she can pay the premium for the next year in that period of time. That is generally 15 days. So we can grant her the claim if the documents are okay and we can confirm her. Are you sure? Yes, sir. Okay. What is Biopharma Shakti? Sorry, sir, I'm not aware. What is Paripurn Mediclaim Ayush Bima? Sir, it is a insurance in Ayush sector, that is Ayurveda. In that, so the basically the claim gets to the patients who's getting the Ayush treatment. What is Ayush full form? So it is Ayurveda, yoga and naturopathy, uh, Unani, Siddha, and homeopathy. Who is Minister of Ayush? So I'm not. Have you heard about Ayushman Bharat Yojana? Yes, sir. What it is? So in Ayushman Bharat Yojana, senior citizens will get the benefit for the health. They'll get the health. Only senior citizens? So now it has been extended to lower ages as well. It has been extended to lower ages now, So recently. or it has extended to the seniors. What is the budget? Budget allocated to Ayushman? What's Vatsalya health program? What are Vishaka guidelines? You are in bank, you must be knowing about it. What is Kaposi sarcoma? So Kaposi sarcoma is an oral condition in which the patient suffers from ulcers in his oral cavity. Are you sure, or you are just guessing? No, sir, I'm sure it is in Kaposi sarcoma. Okay, have you heard with which disease it is associated? So I'm not able to recall. Can you tell some NICL programs running in health sector? So Yuva Ayush health insurance recently has been in the market. It is for the age group of 18 to 45 years of age, and it can be extended to family members as well. Okay, you feel confident. Are you just pretending, or you are just confident? You are naturally confident. Do you follow hierarchy in bank? Hierarchy Yes. system? Yes. What if one of your senior, imagine Vinit sir or Upma ma'am, who are senior than you, like 3 or 4 years senior, tell to pass a claim, and you know that the claim shouldn't be passed because it does not meet all the criterias. What will you do? So firstly, I'll discuss with them as well that what I feel is that it should be passed or not. If they stay on their decision that it should be passed, then I can move to my upper senior or my controller in that.
branch. Have you heard about CABG? CAP, Anything about TKR? no, sir. URSL? No, sir. ESW? ESW. L? CKD? No, sir. COPD? Yes, sir. So it is chronic obstructive pulmonary disorder. It is a disease of lungs. In this, the respiratory system fails. In chronic pulmonary disorder, mainly the bronchioles of the lungs, they f- they uh, they are not working properly. The function decreases, and the patient suffers from breathlessness and breathing problems. USG? Muskan, what is your strength? So my strength is, if I want to do something, I'll work harder on that. If I wanted to be a part of NIACL, I'm working harder on that. I'm good at adaptability as well. I can manage. I am multitasker. I can manage. Currently in my bank also, I am assisting 3 of my senior officers in loan department. So you will be assisting others also here also, right? No, sir. Here I'll be more as a leading them, maybe my juniors. Okay. Upma ma'am? Yes. Hello, Dr. Muskan. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. So I just want to know why you want to shift from SBI to NICL. I feel in SBI only you can grow. The perks are more. Salary will also be more than NICL. So I don't understand. Maybe you have heard that in NICL the workload is little less as compared to SBI. Is that the reason that this is why you want to switch? Ma'am, definitely I've heard about that, but it is not the sole reason I wanted to switch. When I heard about an AO health role, the reason was that it will help me as a doctor also. I'll be joining as a doctor as well as my financial knowledge will help. That was my main sole purpose. When I joined bank, I thought I left my graduation behind. I left my degree of BDS behind. But in this, that is not the case. I'll be taking it together. So apart from SBI, have you given other bank exams also? No, ma'am. Are you SBI planning to attempt any other bank exams? No, ma'am, not as of now. Not as of now. So in future, you may be giving Ma'am, other if exams. I join NIACL, I don't think I'll shift to any other, or I'll give any other exam. But before joining SBI, you thought that only, that you won't be shifting to others. So yeah, when I joined SBI, I just wanted to become a financially independent. I didn't give it the deep thought of what I am going through, or what in which sector I'll enter. My main purpose after graduation was I want to be a financially independent, and that was not possible with my graduation. So Muskan, this was your first attempt or this is second attempt for NICL? Ma'am, my first attempt. Okay. Okay, Muskan, tell me something about hernia. What is hernia? Ma'am, hernia is basically a condition in a body. It can grow in a abdominal cavity. Basically, in stomach also the hernia grows. Hernia is the proliferation of increase of cells in our body. In hernia, muscles. I don't know I can't recall the term, but the muscles increase. As of my personal experience, my father is suffering from hernia. His stomach has increased in his size. It is enlarged due to hernia. Is it hernia? Are you sure? Yes, ma'am. Okay. How does a patient with hernia present? Ma'am, the patient of hernia, it presents with an enlargement in the particular area. What are the types of hernia? You don't know. Okay. Anything about gastritis? You know what is gastritis? Yes, ma'am, it is in gastritis. There is an increase in the acid level in the stomach, the basic symptom. How will you treat a patient with gastritis? Ma'am, we can give him antacids, the first basic which we give at our home as well. Later on, if he's still not recovering from the symptoms, then we can prescribe him more antacids or any further treatment, which includes more basic, acidic to basic. Sorry, ma'am, I'm not. Okay. So Muskan, what do you know about obstructive sleep apnea? What is it? Ma'am, in obstructive sleep apnea, when the patient is sleeping, he's not able to breathe.
when he's laying down flat on the bed surface, he's not able to breathe as there is obstruction in the nostrils or in that is basically sleep There apnea. is one test that we do to identify, to diagnose sleep apnea. What is it? And I studied during my graduation that I think a piece of paper is kept over. In your during your graduation day, were you posted in casualty also during your internship? Yes, ma'am. I have been So posted. have you treated any emergency condition? Ma'am, the basic emergency condition that we treated was an injury or traumatic case in which the patient's tooth was exvolted. No, that is a dental procedure. I'm asking the general casualty if you're posted. So, can you tell me what are the medicines that are kept that should be in the emergency kit? Okay, ma'am. The basic emergency it includes Disprin tablet, Disprin, which acts as an when the patient is suffering from heart attack. Analgesics, basic analgesics are kept. And anything else? Okay, Muskan, tell me something about pneumothorax. What is it? Okay, no problem. What is DNS? DNS. Have you heard deviated nasal septum? Yes, ma'am. I have heard about deviated nasal septum. In this, our nose has a septum present here in the upper area of the nose. When that septum has been deviated, it obstructs our breathing, and it causes the patient to in hypoxia condition. It causes the patient to have less oxygen, and in inhaling also, he's been having problem. That is the symptom of deviated nasal septum. Everybody has a septum, Muskan. It's not like in deviated septum only you will be having a septum. That is, as the term describes, it will be deviated. So Yes. one passage will be narrower as compared to the other. The patient will be having issues in breathing. So how can you correct TNS? Can you correct it with medicine, or do you need the surgery for that? Ma'am, we need the surgery, but it is a basic surgery. It doesn't need hospitalization. What is it? It is a one-day surgery, ma'am. What is the name of the surgery? Oh, ma'am. Okay. Just one last question. What do you know about autism? Autism. Ma'am, it is a condition in which the patient is not able to connect with everyone. Like he's not socially present with everyone. He's little conservative, and he'll learn different things later on. He takes much Nowadays, time. Muskan, we are receiving many claims regarding the autism. Now we have also many insurance companies are covering autism also. So what is the cause for that? Why only nowadays many children are autistic? What can be the reason for that? Ma'am, it is a genetic problem, but I don't know why it is commonly now. Is autism genetic? Are you sure? Yes, ma'am. Okay, okay, sir. Muskan, what is health insurance penetration in India? So the health insurance penetration in India is less than 4%. And what is market share of NICL? So market share of NICL is it is 12%. It is 12.56% earlier, but now it has increased to 13.25%. Okay. How do others describe you, Muskan? You have been in college, you have been to office. How do they describe you? So earlier they describe me as little introvert, but when the time goes on, I open up more. And So yes. in insurance sector also, you'll be reserved to yourself. You won't be dealing with patients or claims. No, sir. When it comes to my work, they describe me as that I can handle so much work and I'm so good at with customers as well. And in my पर मुझे मुस्कान जी ऐसा लग रहा है कि आप वर्कलोड की वजह से एसबीआई छोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हमने वर्कलोड बढ़ाया तो आप यहाँ छोड़ देंगे। नहीं फिर सर, आप कुछ हाँ बोलिए। नो सर, इट इज नॉट द रीजन। एसबीआई में भी मुझे 6 मंथ्स ही हुए हैं। अब जब मैं एसबीआई में इट वाज जस्ट अ मंथ जब मैंने एग्जाम दे दिया था, तो इट वाज नॉट द रीजन कि अभी वर्कलोड ज्यादा है। अच्छा मान लीजिए कि कोई एक पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में Yes, और 5 दिन का मतलब ट्रीटमेंट है, yes. उसके बाद वो ठीक है, फिर भी वो 10 दिन का स्टे ले रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो आप क्लेम उसका पास करेंगे या स्क्रूटनी करेंगे, कुछ करेंगे उस पे?
या बिना क्वेश्चन आस्क किए पास कर देंगे? No, sir, we will not pass the claim. We will check the reason of why he is staying more time in the hospital. हम देखेंगे कि उसका जो पहले का स्टे था 5 डेज का, वो ही क्लेम देंगे उसको। लेकिन जो बाकी डेज का है, we'll diagnose him better, we'll talk with his doctor as well. आपने बीडीएस किया है तो उसमें वाइटल्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। ये वाइटल्स होते क्या हैं? Sir, vitals are pulse points. Vitals मतलब ABC, that is airway, breathing, circulation. ये सबसे पहले vitals में check करते हैं। एयरवे, ब्रीथिंग और ये सब चेक करते हैं। ओके। तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये जो अपना हार्ट रेट होता है, ये कितना होता है? Sir, our heart rate is 60 to 70 beats per और minute. ब्लड प्रेशर कितना रहता है? So blood pressure is 120 by 80 mm. अच्छा मुस्कान जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। मुझे मतलब राइनिया है, स्नीजिंग है। मुझे आप कौन-सी दवा देंगे? Sir, anti-allergic cetirizine will prescribe you first. सिट्राज़िन देंगे कि लिवोसिट्राज़िन देंगे? Sir, anti-allergic levocetirizine. दोनों में डिफरेंस क्या है? लिवोसिट्राज़िन और नॉर्मल सिट्राज़िन में? I don't know. अगर मान लीजिए आपके सीनियर से डिसएग्रीमेंट हुआ तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसको? Sir, senior से अगर disagreement होता है तो सबसे पहले we'll let the matter to little slow down. कि उसके बाद I'll go to my senior and discuss with him calmly कि ऐसा मेरा thinking है और ऐसा आपका है कि अगर आपका मतलब you know much better and आपका ज़्यादा experience है तो I learn from you better. We'll sort it गुड, calm. वेरी गुड। विनीत सर? Good evening, Muskan. Evening, sir. So, you completed your graduation in 2023, Yes, so I completed my graduation in 2024. 24. Okay. After that, what did you do? After that, I started preparing for government exams and I cleared SBI clerk in 2025. So, why did you say it was not possible for you to get financially independent with your graduation? So You just after completed your graduation in 2024. Not even 2 years, मतलब अभी 2 साल भी नहीं हुआ है. So, you did not even try and you are saying कि BDS करने के बाद you are not able to earn anything. It can be two things. Either you are not interested to do BDS, you did BDS ऐसे ही, और BDS मतलब पता नहीं BDS में कुछ देखा ही नहीं, काम करने का सोचा ही नहीं, सीधा एग्जाम दे दिया। तो मतलब how did you make up your mind that I should give exams rather than find some jobs or do some clinical work, और इतने सारे हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल के भी इतने जॉब्स होते हैं, तो वो क्यों नहीं देखा? So when I completed my fourth year in BDS, I was passionate much more that I wanted to pursue MDS. But during my internship, I realized that after doing my BDS, I won't be getting a job that would be enough to financially support me. और उसके बाद मुझे I have to prepare for MDS and I have to give 3 years to MDS and later on I will get a job that will suit me as financially independent. I'll be getting financially independent. तो इतने सारे time, इतना सारा जो years लगने थे उसकी वजह से I started preparing for government exams. That was the reason कि I was not ready to give so many years. ठीक है, तो BDS मतलब जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट्री में उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं Sir, कमा रहे हैं। अच्छा, अगर उनका क्लिनिक सेटअप है तो इट विल टेक कि उनको 5-6 years लगेंगे अपना क्लिनिक उतना सेटअप करने में और उतना कमाने में. It will take that much time. 6 years is decent actually. मतलब व्हाट इज योर एज? यू आर जस्ट 25 26, तो 5 साल में सेटअप हो जाता, 6 साल में यू वुड बी अर्निंग इन लैक्स। अभी इधर भी बैंक में भी क्या ही, मतलब उतना तो वही 5-6 साल ही लगेंगे बैंक में भी। जॉइन NICL ऑल्सो सिमिलर ही रहेगा, मम्मी तो उतना फर्क पैसे वाइज मतलब ऐसे अर्निंग वाइज तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मुस्कान जी शॉर्टकट लेना चाहती हैं। What I see, you did BDS, then you jump to banking, then you are jumping to insurance. Insurance में चलो, let's say you get selected in NICL. Then after that, after a while, maybe after a year or two, you'll see अरे SIDBI, RBI, SEBI ये सब भी है, regulatory bodies exam. चलो अब उधर जाते हैं, फिर उसका एग्जाम देके NICL भी छोड़ के चले जाओगे, हमारा ट्रेनिंग है सब हमारा भी वेस्ट हो जाएगा, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा बिकॉज आई फील कि मेरे लिए यही रोल सबसे बेस्ट है. आई हैव नेवर फेल्ट दैट सेम. मतलब जब मैंने BDS छोड़ने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू करी थी, देन आई नेवर गेव अ थॉट कि मैंने कुछ पर्टिकुलर एग्जाम में जाना है. लेकिन मुझे फाइनेंस साइड में जाना था. दैट वाज आई वाज श्योर अबाउट दैट.
तो जब मैंने आई क्लियर्ड माय एसबीआई एग्जाम, आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं अभी आगे आई डू बेटर, मतलब एसबीआई में आई डिडंट प्लान टू लीव इट। लेकिन जब दिस नोटिफिकेशन केम ऑफ पर्टिकुलर एओ हेल्थ ऑफिसर, दैट वाज द रीजन। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का और मतलब यही था कि मेरा ठीक है, मैंने शॉर्ट that is what actually what I'm saying कि तभी फाइनेंस में, अभी यू टोल्ड मी फाइनेंस में आया, मन किया तो फाइनेंस ज्वाइन कर लिया, उधर आके अब एओ हेल्थ आया तो मन बदल गया ना, तभी फाइनेंस तुरंत 6 महीने ही हुआ है अभी। हाँ अंकित सर, 6 सही महीना बात हुआ है है। और अभी 6 महीने में ही मन बदल गया, मैं ये सोच रहा हूँ। तो इंश्योरेंस में भी आके अभी उससे अच्छा आ गया तो बहुत जल्दी-जल्दी मन बदल रहा है ना, ये क्वेश्चन है मेरा। मतलब कुछ गलत सही नहीं है, इफ यू कैन जस्टिफाई इट देन इट इज़ फाइन। ठीक है। एसबीआई का चेयरमैन कौन है? फिर मिस्टर सी एस शेट्टी सर। ओके। तो एसबीआई जनरल बेटर है कि एनआईसीएल बेटर है जनरल इंश्योरेंस में? सर जनरल हु हैज़ अ बेटर? से सर NIACL general insurance is better than SBI general insurance. अच्छा, एनी रीज़न? So the reason is SBI is more focusing on its, that is financially, that मतलब उनका काम है कि बैंक है कि they are not more focused on general insurance as compared to NIACL, which is particularly giving its all time to insurance. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसबीआई। एसबीआई तो अपना बैंकिंग पे करेगा ही, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। यू मस्ट हैव सोल्ड समथिंग ना बैंक में, या सुना ही होगा, यू आर वर्किंग इन लोन्स ना, तो ग्रुप टर्म Yes, sir. लोन पॉलिसी होता है, Yes, sir. एनआईसीएल भी देता होगा आई थिंक। Yes, sir. तो फिर इफ वी कंपेयर ऑन टर्म्स ऑफ स्केल तो एनआईसीएल बड़ा है कि एसबीआई जनरल बड़ा है? So NIACL. एनआईसीएल बड़ा है। Yes, sir. Then Okay, SBI what? general insurance. Okay, which is the largest public sector general insurer? So largest public sector is NIACL. अच्छा, एनआईसीएल में मार्केट शेयर कितना है गवर्नमेंट का? Uh, ओनरशिप कितना है, कितने शेयर्स है गवर्नमेंट के पास? Sorry, sir, I can't recall particular percentage. ओके। हेल्थ हेल्थ जो एक सर्टेन पैरामीटर जो सेक्टर है उसमें कितना मार्केट शेयर है एनआईसीएल का? नहीं? ठीक है। व्हाट आर द टेल मी एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस? So utmost good faith, principle Mhm. of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, causa proxima, insurable interest. ओके ओके ओके, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि यू हैव अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, कि अभी इंश्योरेंस में आने वाले हो तो अटमोस्ट गुड फेथ के साथ ज्वाइन करोगे, ठीक है। Yes. सो व्हाट इज प्री एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ कुछ, वो प्री एक्सक्लूजन क्यों रखा जाता है जनरल इंश्योरेंस में? So हेल्थ pre-exclusion principles मतलब कि जो waiting period है वो कोई आप पूछ रहे हैं? हाँ, वेटिंग पीरियड क्यों रखते हैं? So if the patient takes the health insurance but he's already suffering from a disease, अगर उसने कल ऑपरेट करवाना है और वो आज लेने जा रहा है इंश्योरेंस, इट मींस कि दैट इज सोल पर्पस मतलब बेनिफिट ले रहे हैं वो इंश्योरेंस का, दैट इज नॉट कि वी आर नॉट पेइंग डायरेक्टली, वी आर नॉट हेयर फॉर डायरेक्टली पे हिम फॉर हिज ट्रीटमेंट। हम एक सिक्योरिटी की तरह काम करना चाहते हैं, इसलिए द वेटिंग पीरियड इज देयर ऑफ सम टाइम फॉर पर्टिकुलर डिसीजेस। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है पेशेंट को तो द वेटिंग पीरियड इज 2 to 4 years अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। तो इट इज फॉर द मेन पर्पसेस कि मिसयूज ना हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। ठीक है, फ्री लुकअप पीरियड क्या है? तो फ्री लुकअप पीरियड इज 15 days, मतलब अगर कस्टमर ने प्रीमियम दे दिया है बट ही इज लुकिंग एट द पॉलिसी, ही इज रीडिंग एंड ही डजंट वांट इट टू बी कंटिन्यूड, तो वो कैंसिल कर सकता है। तो मैं अगर 16th डे पे आऊँ और मैं कहूँ देयर हैव बीन मिस सेलिंग, मुझे कुछ और बोला गया था, दिया कुछ और 16th डे पे, तो फ्री लुकअप पीरियड में नहीं आएगा? नो सर, इट वोंट। श्योर? यस सर। फ्री लुकअप पीरियड 30 डेज है, ठीक है, ठीक है। नितिन सर, मुस्कान जी ये बताइए, एक पेशेंट है उसको फ्लोरोसिस है, ठीक है, और उसको डेंटल ट्रीटमेंट कराना है विनियर्स का, तो आप क्लेम पास करेंगे? नो सर, पहले तो अगर पॉलिसी में पर्टिकुलर मेंशन्ड है फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट, तो वरना मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे नहीं मेंशन होता। डेंटल ट्रीटमेंट कम्स ओनली इफ द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड और अगर उसे कोई इंजरी की वजह से डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है,
और अगर आयुष का पेशेंट आता है, आयुष पास होता है? सर वो भी अगर पॉलिसी में मेंशन है, आज आयुष के लिए अलग से पॉलिसीज भी आई हुई हैं, देन ओके। ओनली। आपकी सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या है? क्योंकि मेरे को आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, ऑलरेडी एसबीआई का बैकग्राउंड, इतना अच्छा कैंडिडेट है, आपकी कुछ तो वीकनेस होगी? सर वीकनेस यही कि आई ओवरथिंक अ लॉट, यही सबसे बड़ी वीकनेस है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपने कुछ किया? यस सर, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, मतलब ये शायद झूठ लगता है अगर वी से डायरेक्टली, लेकिन इट हेल्प्ड मी अ लॉट। ओके। नितिन सर? डॉक्टर मुस्कान ये बताइए अभी हाल ही में एक न्यूज़ में सुन रहा था कि आरबीआई ने लगभग 2000 करोड़ इंजेक्ट किए हैं बैंकिंग सिस्टम्स में। तो ऐसा क्यों किया गया? ये मुझे समझ में नहीं आया, कुछ इस पे बताइए मुझे। आप ही के बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई ने 2000 करोड़ इंजेक्ट किया है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है ये। तो ऐसा क्यों किया है? आपको पता होगा शायद, आपके भी शायद को-एम्प्लॉइज़ बात कर रहे होंगे इसके रिगार्डिंग। अभी अभी बिल्कुल ही जनवरी एंड एंड में। चलिए छोड़िए, छोड़िए, ये बताइए बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है? ये तो पता होगा आपको, बताइए। ये सर बैंक इंश्योरेंस की अगर बैंक अपनी तरफ से, मतलब कि अगर किसी पर्सन ने कुछ बाय करना है, तो बैंक अपनी तरफ से इंश्योर कर रहा है उस पर्सन को कि ही विल पे दैट टर्म, ही विल पे दैट अमाउंट, दैट इज बैंक इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? So insurance to will give him the insurance. The claim will be passed by the insurance company. Assurance is basically कि assure कर रहे हैं, जैसे बैंक assurance. बैंक नहीं पैसे देगा, बैंक is just assuring the insurance company or the insurer. अच्छा, लाइक एंडोमेंट पॉलिसी सुनी है? Endowment क्या policy. क्या चीज़ होती है ये? Sir endowment policy policy. चलिए कोई नहीं। मुझे बताइए डेंटल ट्रीटमेंट्स आपने बताया कि कवर्ड नहीं होते हैं। आयुष्मान ट्रीटमेंट्स का आपको क्या कहना है? आयुष्मान ट्रीटमेंट्स कवर्ड होते हैं पॉलिसीज़ में? जनरल Yes sir. पॉलिसी में? आप बताइए। अगर मेंशन्ड है पॉलिसी में तो आयुष ट्रीटमेंट्स अब कवर हो रहे हैं, और आयुष ट्रीटमेंट्स के लिए अलग से पॉलिसीज भी आ रही हैं। पहले ये कवर्ड नहीं होते थे। सर पहले अगर पॉलिसी में मेंशन होता था तो कवर होते थे, लेकिन अभी कॉमन हो रहा है। कब से हुआ है कॉमन होना? Sir, I recently studied, तो मेरे अकॉर्डिंग I don't know the exact term, but it is more common from last 2 years. डेंटल ट्रीटमेंट्स को क्यों इंक्लूड नहीं, मतलब कब से इसके बारे में आपको पता है क्यों इंक्लूड नहीं होते हैं ये ट्रीटमेंट्स, या कुछ होने की संभावना है इन फ्यूचर? सर डेंटल ट्रीटमेंट्स ज़्यादातर पेशेंट्स इसलिए फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस करवा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। राइट। मुझे बताइए कौन रेगुलेट करता है ये सब चीज़ें? आयुष्मान ट्रीटमेंट कवर्ड होंगे कि नहीं होंगे? डेंटल होंगे कि नहीं होंगे? इनकी कोई बॉडी है कोई रेगुलेशन की? Yes, sir, it is IRDAI body. आईआरडी। Sorry. Yes. ओके, नाइस। ये बताइए सम इंश्योर्ड क्या होता है? So sum insured, the amount that we are insuring to the person, कि कितना अमाउंट उसे मिलेगा आफ्टर द इफ द क्लेम इज पास थ्रू, दैट इज द सम इंश्योर्ड। ओके, सर ने वेटिंग पीरियड्स के बारे में पूछा आपने। मुझे बताइए एक्सक्लूजन्स के बारे में पता है कुछ? जनरल एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं? कैन यू नेम सर एनी एग्जांपल ऑफ जनरल एक्सक्लूजन्स? सर जनरल एक्सक्लूजन ये कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का भी अभी वेटिंग पीरियड होगा, पहले क्लेम नहीं पास होगा, दैट कम्स। नहीं, प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ एक्चुअली टेक्निकली जनरल एक्सक्लूजन में नहीं आती हैं। कोई और बताइए मेरे को। तो डेंटल ट्रीटमेंट्स जनरल एक्सक्लूजन्स में हुँ। एस्थेटिक पर्पसेस के लिए, अगर कोई हुँ। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, दैट कम्स अंडर जनरल एक्सक्लूजन। नाउ यू आर राइट। मुझे बताइए कि लाइक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किसमें आता है? ये क्लेम पास होगा? इनफर्टिलिटी का तो किसी नहीं, इट कम्स अंडर एक्सक्लूजन सर। एक्सक्लूजन में आता है। राइट। एपेंडिसाइटिस के बारे में कोई आपको आइडिया क्या होता है ये? सर यस, it is an organ in our body, appendix. हुँ। And if it gets inflamed, that is appendicitis. व्हाट डू यू नो अबाउट टीकेआर? TKR. चलिए Can फुल you फॉर्म ही बता दीजिए बस। नहीं पता। सीएबीजी पता है क्या होती है? सीएबीजी, पीटीसीए, ये बहुत कॉमन प्रोसेस। टीकेआर तो ऐसा है कि ओल्ड एज फीमेल्स में अक्सर आपने भी अपनी फैमिलीज़ में या फिर कहीं न कहीं होते देखा ही होगा। चलिए मुझे बताइए कि सीएजी किस लिए करवाई जाती है? कोरोनरी एंजियोग्राफी, किसकी जाँच होती है ये? एंजियोग्राफी सर, हाँ, राइट एंजियोग्राफी। बताइए। हार्ट कंडीशंस के लिए सर। हार्ट कंडीशंस के लिए। स्पेसिफिकली कोई इसमें क्या चीज़ हम पता करते हैं? सर एंजियोग्राफी तब होती है अगर पेशेंट को कोई हार्ट अटैक आ गया, हुँ, तो सबसे पहले उसका जो डायग्नोसिस होता है वो एंजियोग्राफी के थ्रू होता है। ठीक है। मॉनिटोरियम पीरियड क्या होता है? सर मोरेटोरियम पीरियड इज द पीरियड कि जिसमें द utmost good faith is applied in during moratorium period. हुँ, अगर हुँ। moratorium period खत्म होने के बाद we cannot deny him the claim on the basis of that he has not disclosed us the true facts. ओके, राइट। मुझे बताइए कॉमन नॉन डिस्क्लोज़र्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन?
नॉन डिस्क्लोजर हाँ, जो मतलब अक्सर पेशेंट आप जानते हैं नॉन डिस्क्लोज़र क्या होते हैं इंश्योरेंस में? बताइए मेरे को। ये सिर्फ से नॉन डिस्क्लोजर जो पेशेंट अक्सर नहीं बताते, हाँ, दैट इज हाँ, अगर राइट। क्या चीज़ अक्सर नहीं बताता है पेशेंट? डायबिटीज एंड हाँ, हाइपरटेंशन आर द बेसिक। एग्ज़ैक्टली, राइट। नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपने सुना है पीपीएन या फिर सो प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट कैन बी डन थ्रू दैट। ओके, तो इसमें बेसिकली रिइंबर्समेंट क्या होता है? So reimbursement वही अगर we are giving the patient, we are giving the customer the claim, हम उसे कुछ हुँ, reimburse कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? turn around time, टीपीए क्या होता है? टीपीए, third party administrator sir. कैन यू नेम एनी एग्जांपल ऑफ टीपीए? So third party administrator, yes, sir. कोई So कंपनी का नाम? hospitals also act as a third party नहीं, administrator. नहीं। तो अगर हमारा एक ऑफिसर हाँ, एक्ट एज अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो क्लेम्स पास करने में हेल्प करेगा, हॉस्पिटल से भी और हमारी इंश्योरेंस कंपनी से और इंश्योर्ड पर्सन तीनों के साथ ही वर्क एंड एक्ट एज अ हुँ, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ यू आर करेक्ट। मुझे बताइए कि को-पेमेंट क्या होता है और डिडक्टिबल क्या होता है? So co-payment is when it is agreed that some part of the sum insured will be paid by the insured person ठीक है। and paid by the insurance company. And so deductibles are the amount that is deducted from the sum insured. अगर if for example room rent, hospital का room rent that is 1% of the sum insured, तो उसमें भी जो बाकी that is deductible. चलिए ये अच्छा fee चलिए अच्छा आप मुझे बस एक बात बताते जाइए कि इस बार का बजट आपको कैसा लगा? अभी आया ना बजट? sir, yes, sir. हाँ, कुछ बताइए कैसा रहा बजट बैंकिंग के लिए कैसा रहा या फिर इंश्योरेंस के लिए उसमें कुछ था कि नहीं था? कैसा लगा आपको Sir, ओवरऑल? सर ओवरऑल मतलब टैक्सेस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। ओवरऑल आई थॉट कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, उस पे ज़्यादा मतलब फोकस था इस बारी के बजट का। अभी हाल ही यूएस इंडिया की डील फाइनल हुई है, कुछ इसके बारे में आइडिया आपको? कितना परसेंट टैरिफ था, कितना कर दिया गया फाइनली? कोई आइडिया? सर मुझे इतना है कि फार्मास्यूटिकल्स का कुछ हुआ है कि दैट इज़ सॉर्टेड, ऐसा न्यूज़ आई है कि उसमें टैक्सेस कम हुए हैं। चलिए ठीक है, मुस्कान वेरी नाइस। मुस्कान जी, ये आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है? कुछ आइडिया है? आर्थ्रोप्लास्ट साइम्स एम्पुटेशन के बारे में सुना है? सॉरी सर। साइम्स एम्पुटेशन। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, यही बता दीजिए। All four chambers are present in heart: left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. और पेसमेकर किस एट्रियम में होगा? सर पेसमेकर साइनो नोड पे लगता है। नहीं, वो तो उसका नाम है ऐसे नोड। यस कहाँ सर। पर होता है? ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन सर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा, हेपेटाइटिस के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? सर हेपेटाइटिस वायरल कंडीशन। अच्छा, जो डेंगू का बैक्टीरिया का नाम क्या है? डेंगू बीमारी होती है, उसकी बैक्टीरिया का नाम क्या है? यस सर। सर फेल्सीपैरम सेकंड आई जस्ट डेंगू किस बैक्टीरिया से होता है? सॉरी सर आई एम नॉट एबल कोई टू। बात नहीं मुस्कान जी। मुस्कान जी, एक फाइनल क्वेश्चन है। देखिए, हम टोटल 4 जने हैं और 4 में से 2 जने आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, 2 जने नहीं करना चाहते क्योंकि एक दूसरा कैंडिडेट है, उसके प्रेफ़रेंस पे ज़्यादा है। तो आप है ना 2 लाइन में हमको बता दीजिए कि क्यों हम आपको सिलेक्ट कर लें? सर बिकॉज़ पहले मेरी जो ग्रेजुएशन और बैंकिंग नॉलेज है दैट विल अ लॉट हेल्प इन एनआईएसीएल, और अभी से आई कैन हेल्प इन मल्टीटास्किंग। आई एम एज़ यू नो आई एम असिस्टिंग 3 ऑफिसर्स, so that will also help in NIACL, and I'm good at adaptability as well. ओके, वेरी गुड मुस्कान। मुस्कान जी, आप एक काम कर दीजिए, बस जैसे डोर से आते हैं और मे आई कम इन और वो जो करते हैं, वो एक बार करके बस बता दीजिए, इफ यू आर कंफर्टेबल। Yes sir, but सर अपर हाफ से ही रेडी हूँ, आई एम नॉट रेडी। ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। मुस्कान जी, आप अभी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, है ना? और हम 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे, क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या मतलब प्रोस एंड कॉन्स हैं, और फिर आप वापस रिकनेक्ट करिएगा, फिर बात कर लेंगे, ठीक है? Yes sir, yes, ओके डॉक्टर। thank you sir. जी। Yes sir. देखिए मुस्कान जी, मतलब आपका मेडिकल का जो नॉलेज है ना, वो काफ़ी हद तक आप भूल चुके हैं, है ना? क्योंकि अब टाइम हो गया, मैं मानता हूँ आप बैंकिंग के एग्ज़ाम कर रहे थे, तो एट लीस्ट आपको एक काम करना है, जो पीडीएफ दी है ना, उसमें हाँ आप देखिएगा एक एनआईसीएल की पीडीएफ भी है। तो yes sir. उसमें जो टर्म्स हैं, खासकर शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो एटलीस्ट जैसे सीएबीजी, ये सब बहुत कॉमन शॉर्ट टीकेआर और फिर यूएसजी, ईएसडब्ल्यूएल, बहुत कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको एटलीस्ट थोड़ा-थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा, ठीक है? Yes sir. और कभी-कभी आपको आंसर नहीं पता होता, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली कहते हैं, "यस, आई एम श्योर", तो उसमें भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, तो डाउटफुल रखने का कोई बात नहीं है, ऐसे इतना श्योरली नहीं बोलने का। जैसे डेंगू का मैंने बैक्टीरिया बोला, अब डेंगू वायरस है, तो थोड़ा-सा आप ना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए उसमें। ठीक है और बजट का थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है?
Yes. दूसरा ये देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि डेंटिस्ट्री का हाल क्या है ना? लेकिन इस इतना ब्लैटेंटली आप अगर उधर बोलेंगे तो उनको दे डोंट नो इट अभी, है ना? उनको नहीं पता। तो आप ये कह सकते हैं कुछ भी करके कि हाँ, मैं अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती थी। ये नहीं कि डेंटिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। थोड़ा-सा उसको आपको सटल तरीके से कहना है। ठीक है। ठीक है? देखो व्हाटएवर जिसने भी इतना टाइम डाला ना करने में 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन में, बाद में देखो कुछ करने के बाद ही पता चलता है दैट एवरीवन नोज़ कि इसमें हाँ जी। इंटरेस्ट नहीं है या उसका स्कोप नहीं है या जो भी हो। लेकिन उनको वैसे किसी को नहीं बोल सकते हो कि प्रोफेशनल जहाँ इंटरव्यू है कि नॉट पॉसिबल विथ माय ग्रेजुएशन, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है, लोग कमाने वाले बहुत कमा रहे हैं उससे भी, वो फील्ड में भी। तो हो सकता है उधर भी कोई बैठा हो वो करके, तो हाँ, उसको थोड़ा-सा सटल वे में थोड़ा ईगो सटल वे हर्ट में। हो गया तो वो ग्रिल करना स्टार्ट कर देंगे फिर। तो वैसा नहीं बोलना कि पॉसिबल नहीं था ग्रेजुएशन के साथ। ये बोल देना कि वो पॉइंट अच्छा था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे थे यू स्टार्टेड गिविंग देम, बैंक का निकल गया तो यू जॉइन्ड। और Yes. फिर हाँ, बट ऐसा उसको पोर्ट्रे करो, बट योर एक्चुअल हार्ट एंड माइंड वाज़ इन एग्ज़ाम्स और ऑर्गनाइज़ेशन, जहाँ हेल्थ का भी मैं नॉलेज यूज़ कर पाऊँ। तो ठीक है। एनआईसीएल का ये आया हाँ और जी। दिस वाज़ द परफेक्ट मोमेंट आई वाज़ वेटिंग फॉर। सो दैट इज़ व्हाई आई अप्लाइड फॉर इट एंड यही मतलब, और वो हो सकता है पूछेंगे कि इससे बीडीएस करके इधर आई, इससे फिर इंश्योरेंस में आ रही हो, फिर जैसे मैंने पूछा, इधर फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ है किसी और का आ गया। तो Yes. एकदम मतलब फर्मली बोलना कि नहीं, मतलब यही दिस इज़ वेयर आई वांट टू ग्रो और Okay. इधर मेरा नॉलेज भी पूरा यूज़ आएगा, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, वैसे करके बोल, ठीक है? और बाकी इंश्योरेंस का भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मतलब ज़्यादा अभी काम करने के साथ थोड़ा ये होता है, बट टाइम निकाल के अभी के साथ को है ना इंटरव्यू, हाँ जी। Yes. ठीक है? तो इंश्योरेंस के भी टर्म्स वो सब पढ़ लेना, ठीक है? Yes. देखिए मुस्कान जी, आपका प्रेज़ेंस बहुत अच्छा है ना? हुँ। आपका बोलने की आवाज़-वाज़ सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रेज़ेंस स्क्रीन जब मतलब सामने आप बैठेंगे तो सही में अच्छा लगेगा। हुँ, थोड़ा-सा मतलब आप थोड़ा-थोड़ा सा जो टर्म्स है ना, वो कर Yes. लीजिए। मतलब एक बार ब्रश अप होगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। एक बार ठीक है? पढ़ लिया ना, सब पढ़ लिया तो फिर वन्स यू स्टार्ट आंसरिंग तो फिर मतलब और कोई कमी थी नहीं। प्रेज़ेंस अच्छा है, आप सब चीज़ अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस है, सब प्रेज़ेंस सब चीज़ लिटरली बहुत अच्छा था। बस नॉलेज का गैप है। वो मतलब खासकर मेडिकल वाले में। तो वो Yes. जितना बेसिक वाले थे वो सब बिल्कुल कवर करना बेसिक। पड़ेगा। ठीक है। उपमा मैम? हुँ। यस मुस्कान, सी इफ यू आर अ डेंटल ग्रेजुएट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप यूएसजी का फुल फॉर्म बताओगे। यूएसजी तो बहुत ही कॉमन चीज है। आप Yes. यूएसजी पे अटक जा रहे होगे, यूएसजी क्या है, तो ये थोड़ा ब्लंडर जैसा हो जाता है कि अच्छा शायद ग्रेजुएशन का तो कुछ याद नहीं है। तो कोई नहीं, अभी तो जो पीडीएफ टाइम भी है आपके पास, जो पीडीएफ दी गई है आपको, बस वो भी पढ़ लोगे ना तो भी हो जाएगा। वहाँ बहुत बेसिक बहुत ईजी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो वो इतना टफ नहीं होने वाला। हम तो थोड़ा टफ टफ पूछ रहे हैं क्योंकि हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। Yes. और इंश्योरेंस का भी आप वो पीडीएफ ही पढ़ लो, बस आपका 7 को है तो टाइम है, तो Yes. 1-2 दिन अगर वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल हो, सब बहुत अच्छा है। बस वो थोड़ा-सा आंसर्स का वो आ रहा है। और जब आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपको लगे कि अरे अब तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मैंने भी बहुत आंसर्स में बोला था कि मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बेसिक्स तो बताने हैं हमें कि टीकेआर क्या है, यूएसजी क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, तो वो ये तो एक्सपेक्ट करते हैं। अब यूएसजी तो देखो वहाँ पे अगर कोई नॉन मेडिको है उसको भी पता है कि यूएसजी क्या होता है। तो यूएसजी आपको बताना है। अब जैसे आपने हर्निया का मुझे बताया कि आपके फादर को है, तो अगर आप ये मेंशन कर दे रहे हो कि मेरे फादर को है तो, और आप एक मेडिको भी हो, तो फिर तो वो एक्सपेक्ट करेंगे भाई इसको अब तो हर्निया का सब पता होगा। आप Yes. हर्निया भी नहीं बता पाए ठीक से। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसे मेंशन कर रहे हो, या तो मेंशन ही मत करो कि मेरे घर में है किसी को, तो कोई बात नहीं भाई, नहीं पता होता, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हर्निया भी देखो बहुत कॉमन है। मैंने बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे हैं। और तो क्वेश्चन इससे ईज़ी ही पूछे जाएँगे, बट जो क्वेश्चन हमने पूछे वो भी बहुत सिंपल थे, बहुत ईज़ी थे। वो बस मुझे लग रहा है कि आपने अभी शायद उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। आप एक बार वो पीडीएफ देख लो, जो टर्म्स इंश्योरेंस में यूज़ होते हैं, वो तो आपको आने ही चाहिए। Okay. और इस तरीके से भी आपको थोड़ा चेक किया जाएगा, जैसे सर ने चेक किया कि कौन-सा बैक्टीरिया होता है इसमें डेंगू में। Yes. तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्या पूछ रहे हैं। शायद आपके दिमाग में वायरस ही चल रहा हो, बट हाँ आप जी। सुन रहे हो सर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है मुझसे। Okay. ma'am. ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस वो 2 पीडीएफ पढ़ लो, कॉन्फिडेंटली जाओ, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट मुस्कान। Thank you so much. वैसे मेंस में आपके मार्क्स कैसे थे? मतलब कैसा पेपर अटेम्प्ट किया था आपने? सर बहुत अच्छा ही हुआ था मेरे अकॉर्डिंग तो 10-15 मार्क्स प्लस ही आए होंगे कट ऑफ से। ओके, तो हो जाना चाहिए आपका। नितिन सर? देखो मुस्कान, आपका मैं समझता हूँ मेंस एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। जैसे कि आप ऑलरेडी एसबीआई क्वालिफाइड हो, ठीक है? तो मेजरली जो सिलेक्शन होगा वो मेंस पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है? हुँ। ऑल्दो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस कुछ-कुछ चीज़ें, और मैं बता रहा हूँ आपको जो इंटरव्यू होगा ना बहुत ईज़ी होगा। हम लोग तो बहुत टफ ले रहे हैं, जैसे कि उपमा मैम ने कहा, ठीक है? हाँ जी। बहुत तो easy। हाँ, लाइक जैसे मैं हम सभी ने आपसे बेसिक-बेसिक ही पूछा था, पीटीसी क्या होता है? सीएबीजी क्या होता है? ये दीज़ आर वेरी बेसिक, टीकेआर क्या होता है?
अब बैंक का इंश्योरेंस आप जैसे आप बैंक से हो तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि बैंक का एश्योरेंस क्या होता है, ठीक है? अभी जैसे पूछा आपको 2000 करोड़ आरबीआई ने जो इंजेक्ट किए हैं, वो सब आप थोड़ा-सा देख लेना, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स में से है, ठीक है? टीपीए के एग्ज़ाम्पल्स पढ़ लेना क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में हमने एक फीडबैक लिया था, वो वहाँ पूछ रहे हैं कि टीपीए एनआईसीएल के संग टीपीए कौन-कौन सी कंपनी काम करती हैं? तो टीपीए के एग्ज़ाम्पल्स भी आप पढ़ के जाना, टीपीए क्या होती है, ठीक है? इट इज़ जस्ट बेसिक कनेक्टिंग लिंक होती है हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस में। ये